عبد الباری کے سنگ۔ امی یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ دال اور بھاجی چٹنی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ عبد الباری ہمیں ہر حلال چیز کھانا چاہیے، چلو جلدی سے کھانا شروع کرو۔ نہیں امی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے کچھ اچھا کھانا دو یا تو میں صرف فروٹس کھاؤں گا۔ عبد الباری کیوں تم ضد کر رہے ہو؟ جو سامنے آ جائے اسے کھا لو۔ ان ہری سبزیوں میں بھی طاقت اور وٹامنس ہوتے ہیں اور کیلشیم بھی۔ مجھے بہت طاقت ہے آپا، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ ہمیشہ مسالے دار اور تیز کھاتے رہو گے تو پیٹ کا ہاضمہ خراب ہوگا، اور جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو ہمارا پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں کمزور بننا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو چلو جلدی سے کھانا شروع کرو۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ کتنا برا لگ رہا ہے یہ کھانا، بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہے۔ عبد الباری اس طرح کھانے کو برا بھلا نہیں کہتے، تمہیں یہ سبزی اچھی نہیں لگتی، تم کہہ چکے، اب نہیں کھانا تو خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ کوئی بھی کھانے کی چیز کی برائی کرو۔ ہاں عبد الباری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا اچھا لگتا وہ اس کی تعریف کرتے اور کھاتے، اور جو اچھا نہ لگتا تو خاموش رہتے، لیکن کبھی کھانے کو برا نہ کہتے۔ لیکن یہ کھانا… عبد الباری دیکھو، میں نے کل ہی نیوز میں دیکھی تھی کہ دنیا میں کتنے ہی لوگوں کو بہت سادہ کھانا نصیب ہوتا ہے، کئی جگہ تو غریب لوگ بھوک سے بلبلاتے ہیں اور دوسروں کا پھینکا ہوا جھوٹا کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ جھوٹا کھانا؟ وہ کیسے کھائیں گے آپا؟ ہم تو کچرے میں پھینکتے ہیں۔ ہوٹلوں میں لوگوں کا کھا کر پھینکا ہوا جھوٹا لے جاتے ہیں اور بہت سے جگہوں پر تو کچروں میں پھینکا ہوا چن کر بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی آپا؟ ہاں عبد الباری، اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازے۔ ہر چیز سے آپا؟ ہاں، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، یہ گھر اور ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، لیکن آپا میں ہمیشہ کھانے کے بعد اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عمل سے بھی اس بات کی گواہی دو کہ تم واقعی میں اللہ کے شکر گزار بندے ہو۔ اپنے اعمال سے؟ وہ کیسے آپا؟ وہ ایسے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی کھانا آئے تو ہم اس کھانے کی برائی نہ کریں اور نہ ہی اپنا منہ بنائے، اور اپنے سامنے جو کھانا آئے اسے خوشی سے کھائے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں یہ سبزی، گیہوں، چاول اور ہر طرح کے کھانے کی چیز فراہم کیے ہے، اور ہمیں اللہ نے جو فراہم کیے ہے اس کی برائی نہیں بلکہ خوشی سے کھانا چاہیے، اور اپنے قول اور عمل دونوں ہی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں آپا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچو، اگر ہمیں بھی بھوکا رہنا پڑتا اور دوسروں کا جھوٹا کھانا پڑتا تو کتنا برا لگتا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیز ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے کہ کتنا بھی لیے اور آدھا کھائے اور آدھا چھوڑ دیے، ورنہ یہ بھی اللہ کی ناشکری ہوگی کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے کھانے کی قدر نہ کی۔ ٹھیک ہے آپا، اب سے امی مجھے جو بھی کھانا دیں گے اسے میں خوشی خوشی کھاؤں گا، اور اپنے پلیٹ کو پوری طرح صاف کر کے کھاؤں گا، ایک بھی دانہ نہیں چھوڑوں گا میں آپا۔ ماشاء اللہ، تب تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہاں، میں ان باتوں کو اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ عبد الباری کیا ہوا؟ تم کھانا ختم کر چکے؟ جی امی، بس ابھی کھانا کھا لوں گا، اور امی مجھے پسند ہے یہ سبزی اور دال اور ہر کھانے کی چیز جو آپ بناتے ہو۔ کیا ہوا آپا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، تم کھانے سے فارغ ہو کر آؤ۔ آپا کیا ہوا؟ آپ کے پلیٹ میں پورے 3 چاول کے دانے رہ گئے ہیں، اپنے پلیٹ کو صاف کر کے کھانا چاہیے۔ او ہاں، لو صاف کر دی۔ ماشاء اللہ آپا، اب اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو امید ہے آپ سبھی لوگ جو ہے ہر طرح کی چیزیں، ہر وہ حلال چیز جو اللہ نے فراہم کی ہے اسے کھانا سیکھیں گے اور خوشی سے کھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ میں جا رہا ہوں آپا، نوید اور سرفراز انتظار کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے عبد الباری،
तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप जल्दी आ जाना, हम खेल शुरू कर देंगे। ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे इन्हें रोकना होगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो सरफराज? अरे छोड़ दो उसे, ये ठीक नहीं। अरे वाह अब्दुल बारी, तुम आ गए। लेकिन तुम देर से आए हो। हाँ, मैं असर की नमाज पढ़ने गया था। ठीक है, अब चलो आओ, देखो कितना मजा आ रहा है बकरियों की फाइटिंग कराने में। हाँ, ये मुर्गी और बिल्ली को भगाने में भी। आओ तुम भी मजे लो। हाँ, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसमें ठीक लगने की क्या बात है, हम तो बस खेल रहे हैं। लेकिन इस तरह ये अच्छी बात तो नहीं लगती। अब बस भी करो, चलो खेलते हैं। ये लकड़ी तुम ले लो। ठीक है चलो। रुक जाओ अब्दुल बारी। आपा क्या हुआ? तुम भी इस तरह के खेल करने जा रहे हो? मैं ऐसे खेल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था आपा। वो तो नवीद और सरफराज ने। ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है आपा? यही कि बिला वजह हम अपना दिल बहलाने के लिए जानवरों को इस तरह सताए। लेकिन आपा, हम तो बस खेल रहे हैं। हम मजे और खुशी के लिए खेलते हैं और अपने मजे और शौक के लिए हमें किसी को भी सताने का हक नहीं है। लेकिन आपा, हम तो बस जानवर के साथ खेल रहे हैं। इस तरह उन्हें मारते हुए और सताते हुए। अरे हाँ आपा, मुझे याद आया, अब्बा ने बोली थी कि हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना चाहिए कि वो किस तरह पेश आते थे लोगों के साथ और जानवरों के साथ भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। प्यारे नबी सब पर रहम करते। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवरों पर रहम करते थे? हाँ, जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपने जानवरों पर ज्यादा वजन डालते हुए देखते या कोई अपनी जानवरों को अच्छी तरह से खिलाना पिलाना ना करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अपने जानवरों के साथ पेश आने में भी अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो? हाँ, अगर हम जानवरों से काम लेने में ज्यादती करेंगे और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें खाने को नहीं देंगे, तो अल्लाह इसके लिए हमसे सवाल करेंगे। इसी तरह अपने मजे और शौक के लिए किसी जानवर को मारेंगे, उसे सताएंगे, तो इसकी भी पकड़ होगी आखिरत में। लेकिन आपा, जानवरों से कैसे ज्यादा काम लिया जाता है? जैसे कि घोड़ों पर सवारी। बहुत पहले ऊंट और गधों पर सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था, और अब भी कुछ गांव देहातों में ऐसा करते हैं लोग। और लोग कितने ही जानवर पालते हैं, सो उनकी देखरेख सही तरह से करनी चाहिए, उन्हें बराबर खाना मुहैया करना चाहिए। इसीलिए तो मैं मना करा था, ये गलत है। लेकिन आपा, अब हम क्या करें? हमने तो इन बकरी को लड़वाकर खूब सताया। हाँ, मैंने बिल्ली और मुर्गी को मार मार कर भगाया। अब हम क्या करें? हमें इसका जवाब अल्लाह को देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इस बात को अच्छा समझे। हाँ, तो अब हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना करेंगे, इस बात को याद रखना चाहिए। हाँ, अब हम आगे से जानवरों के साथ रहम से पेश आएंगे। बहुत अच्छे। चलो, अब मगरिब का वक्त हो चुका, हमें अपने अपने घर पहुंचना चाहिए। ठीक है नवीद, हम कल मिलेंगे सरफराज। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग जो है किसी भी जानवर को सताएंगे, खास करके जो है जानवरों को। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब जो है जानवर हमारे पास होता है और हम उनको जो बहुत सताते हैं, और इस चीज़ से रुकेंगे कि अपना इंटरटेनमेंट और अपने मज़े के लिए हम जो किसी जानवरों को सताए और जिससे कि उससे तकलीफ होती हो। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। वाओ, ये चिकन ग्रीन तो मेरा फेवरेट है। हाँ सरफराज, ये तो मुझे भी पसंद है। वैसे मुझे दावत में हर चीज पसंद आती है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो टेस्टी है। अब देखना तुम दोनों, मैं कैसे सभी चीज खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। लेकिन अब्दुल बारी, अंशरा आपा कहाँ है? वो अम्मी के साथ लेडीज रूम में है। लेकिन तुम इतना थोड़ा सा लेकर क्यों खा रहे हो अब्दुल बारी? अब्बा और अम्मी ने सिखाया है
कि हम थोड़ा थोड़ा करके ले और तुम दोनों को भी कम लेकर खाना चाहिए। अरे अब्दुल बारी, हम दावत में आए हैं, ज्यादा लो और खाओ। नहीं, अगर जरूरत लगी और भूख बाकी रही तो दोबारा ले लूँगा। जाओ, तुम्हें जैसा खाना है खाओ, हम तो सब चीज लेकर खाएंगे। ये ठीक नहीं। वो क्यों भला? जो कोई वजह हो, लेकिन फिल वक्त खाने दो मुझे। हैं? इन्हें मैं कैसे समझाऊं? ये इतना खाना ले रहे हैं, पता नहीं पूरा खा पाएंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मैंने नहीं समझाया तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर इन्होंने खाना छोड़ दिए तो वो जाया होगा और फेंकने में जाएगा। अब बस, मेरा तो पेट बिल्कुल भर गया, अब और नहीं खा सकता मैं। और ये मैं भी रुक जाता हूँ, अब पेट दर्द हो रहा है। नवेद, सरफराज, ये क्या? ये तुम लोगों ने प्लेट में खाना छोड़ दिए, वो भी इतना सारा? हाँ, इसमें क्या हुआ? जब पेट भर जाता है तो मैं हमेशा छोड़ देता हूँ बचा हुआ खाना। बहुत गलत बात है ये दोस्तों। हमें कहीं भी, चाहे घर में हो या बाहर दावत में, खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये तो फेंकने में चला जाएगा। अरे तो तुम क्या चाहते हो? हमारा पेट भर चुका तो क्या फिर भी हम प्लेट साफ करके खाएं? इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना चाहिए अपनी प्लेट में, ताकि पेट भर जाए तो प्लेट में खाना बचा हुआ नहीं रह जाए। ठीक है, लेकिन प्लेट में खाना रह जाए तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं है? देखो, हाल ही में मुझे मालूम हुआ कि कितने ही गरीब लोगों को ठीक तरह से पेट भरकर खाना नहीं मिलता और वो लोग आधा पेट खाते हैं। तो उनके खाने से हमारे पेट का क्या? अरे रे नवेद, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को भी बराबर मिले, खासकर गरीबों को। और हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए कि उसने हमें खिलाया पिलाया। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता हमारा पेट कब भरेगा, और इसीलिए मैंने ज्यादा ले लिया, जो अब बच गया हमें कम लेना चाहिए। और क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हमें अपने भूख के मुताबिक थोड़ा कम ही खाना चाहिए, मतलब पेट में खाली जगह छोड़ देना चाहिए। अरे वो क्यों? जब खाना है तो खाएंगे ही ना। थोड़ा कम खाने से हमारा हाजमा ठीक रहता है, और अगर हाजमा ठीक रहे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो अगर सेहतमंद रहना है तो थोड़ा कम ही खाए। अरे अब खा पी लो अब्दुल बारी, ये दावत है। नहीं, दावत हो, शादी का खाना हो, हमें हर जगह खाने को जाया होने से बचाना चाहिए। ये देखो, मैंने अपना प्लेट कैसे साफ करके खाया हूँ, जरा भी वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है अब्दुल बारी, हम भी आइंदा से थोड़ा थोड़ा लेकर खाएंगे ताकि वेस्ट ना हो। हाँ ठीक है, अब चलो, ये हुई ना बात। चलो, आपा भी खा चुके होंगे और शायद इंतजार करते होंगे। ये तो अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फिक्रमंद वालिदैन, देखा हमने किस तरह जो है बच्चे अब्दुल बारी, नवेद और सरफराज जो इस बात को डिस्कस करते हैं कि खाना जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ना लें और उसे यूं ही ज़ाया ना करे, इसराफ ना करे, कि वो जो है खाना आंखों की भूख रहती है एक तरह से कहे, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जो है दावतों में, शादियों में अक्सर जो है खाना ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं यूं ही। दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब लोग है ना, ऐसे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे घर हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे आधा पेट खाना खाते हैं या बहुत अच्छा खाना उन्हें मुहैया नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम जो है खाना इसराफ ना करें, फेंके नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, और बेहतर तो ये कि थोड़ा कम ही ले, थोड़ा कम ही खाए, उससे जो है हमारा हाजमा और सेहत जो है वो अच्छा रहता है। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, और अपने बच्चों को इस बात की तालीम देंगे कि वो जो है कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, अपने घर में भी जो है खाना थोड़ा थोड़ा करके ले और इसराफ ना करे उसका। सब्सक्राइब करना भूले नहीं इंशाल्लाह। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी, क्या नवेद तुम्हारे घर आया था? नहीं। क्यों, क्या बात है? आज वो खेलने नहीं आया? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। वो अपने घर के किसी काम में रह गया होगा। नहीं, उसने कहा था कि वो वक्त पर आ जाएगा,
और हम साथ खेलेंगे। शायद अम्मी ने रोक दिए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज वो अपना नया गैजेट बताने वाला था। नया गैजेट? हाँ, और उसने कहा था कि वो हमें मिलकर ही बताएगा। आखिर क्या गैजेट मिला है उसे? तो जाकर घर में ही देख लो। मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे इजाजत नहीं कि मैं बिना अम्मी और अब्बू से पूछे किसी के घर में दाखिल हूँ। तुम जाओ, मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ खेलने की इजाजत ली है अम्मी से। ठीक है, हम खेलने जाते हैं। और अगर वो अपने घर के बाहर दिख गया तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखो मैं वहाँ से अपना खेलने चले जाऊँगा। तुम मिल लेना नवेद से। Yes, this is Abdul Bari. He's quite a good boy. अरे नवेद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। ओ हाँ, वो ये तो बहुत गलत बात है नवेद कि तुम किसी को कहो और वक्त पे ना पहुँचो और ना ही कोई इख्तिला करो। बेचारा सरफराज कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे वाह नवेद, तो तुम्हें ये नया गैजेट मिल ही गया। हाँ सरफराज, डैडी ने मुझे ये टैब लेकर दिए है। तुम्हें वो भी टैब? वो दरअसल घर के लिए है ताकि मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट भी आसानी से देख सकूं। ठीक है। हमें तो अब्बू कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है इस उम्र में, और हम स्कूल प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं, वो भी अम्मी और अब्बू के साथ। जब हम 10-11 साल के हो जाएंगे तब अब्बू हमें टैब लेकर देंगे। वाह नवेद, तुम क्या देख रहे हो? मुझे भी देखना और सुनना है। हाँ हाँ चलो, हम दोनों यही देखकर मजे करते हैं। तुम दोनों खेलो, मैं तो चला। वैसे भी हमारे लिए इस वर्चुअल से ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है अब्दुल बारी, तुम जाओ, हम तो यही मजे करेंगे। लेकिन एक बार तुम भी देखो, ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या है? देखो जरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे क्या हुआ अब्दुल बारी? ये कैसी बुरी चीजें देखते हो और सुनते हो तुम? ऐसी चीजों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसमें क्या बात है अब्दुल बारी? ये तो एक नया गाना है। आओ हम दूसरे फनी चीजें देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब लग़वियात है। हैं? ये लग़वियात भला क्या है? लग़वियात के मतलब है हर वो काम, हर वो बात या हरकत जो अल्लाह को नापसंद हो। अच्छा हुआ आपा आप आ गए। देखो तो ये मेरे दोस्त क्या क्या देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपा अल्लाह को नापसंद? हाँ नवेद, हमें हर उस काम से रुक जाना चाहिए जो हमारा वक्त ऐसे ही बेकार में जाया करता हो, जिनसे ना तो हमें और ना ही दूसरों को फायदा पहुंचता हो, बल्कि हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, अब जाने भी दो, आप लोग जाकर खेलो, हम यही खेल लेंगे। आपा इन्हें वो बताओ जो हमने कल कुरान में पढ़े थे, वो नेमतों के ताल्लुक से। लो, अब तो गए काम से। नवेद, कल ही हमने पढ़े कुरान के सूरह तकासुर में कि उस दिन मतलब आखिरत के दिन अल्लाह हमसे सारी नेमतों का हिसाब लेंगे। नेमतों का हिसाब? नेमतों से क्या मतलब है आपा? मैं बताऊँ इन्हें आपा? हाँ हाँ जरूर अब्दुल बारी। देखो, दरअसल अल्लाह हमसे हर उन चीजों का हिसाब लेंगे जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। पानी, खाना, पैसे, अनाज और हर चीजों का। इसी तरह ये टैब भी तो अल्लाह की तरफ से नेमत ही है ना, और इसका भी हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, इसका हिसाब तो साफ है। अब्बा के पास तो इसका बिल भी है। अरे नवीद, ऐसा नहीं है। हिसाब से मुराद ये है कि हमें जो नेमत अल्लाह ने दिए है उसका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। अच्छा हाँ, और साथ ही ये जो बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें अता किए हैं जो बहुत से लोगों को नहीं मिला, इनका भी हिसाब लेंगे अल्लाह ताला। बड़ी बड़ी नेमत? हाँ नवेद, देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में कितने ही नेमतें दिए हैं, और उनको देखने और उनसे फायदे उठाने के लिए हमारे जिस्म में हाथ पैर, ये आंखें, जबान और सुनने की काबिलियत, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। आपा, लेकिन इन सब बातों का हमारे टैब में इन चीजों को देखने से क्या? अरे सरफराज, तुम इतना भी नहीं समझते। हमें अल्लाह को हिसाब देना होगा इन नेमतों का कि हमने अपनी आँखों का क्या इस्तेमाल किए, अच्छी चीज देखने में, अच्छी बातों को पढ़ने और सीखने में, या फिर इनसे हमने बुरी चीजें देखी। अपने कान से हमने अच्छी बातें सुनी और इनसे अच्छी तालीम सीखे,
या फिर बुराइयाँ, फहाशियत वगैरह देखे और सुने। मैंने सही कहा ना आपा? बिल्कुल सही अब्दुल बारी। हमें अल्लाह के दिए हुए हर नेमत का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जवाब दे पाए जब हश्र के मैदान में इन नेमतों की पूछताछ होगी हमसे। हाँ, और आपा ये भी कि अगर हमने जवाब नहीं दिए तो हमारी आंखें, हमारे कान और हाथ पैर सभी बोल उठेंगे कि हमने इनका गलत इस्तेमाल किए। क्या सच में? हाँ सच में, ये तो अल्लाह ने कुरान में बोले हैं। अब हम क्या करें आपा? इन नए नए टेक्नोलॉजीज का सही इस्तेमाल करें, इनके जरिए अपने अंदर और लोगों में बेहतरी का काम करें, तो ये सारे जदीद जमाने की चीजें फायदेमंद होंगे और बिला जरूरत इन टीवी, मोबाइल्स, टैब्स, कंप्यूटर में ना रहे। इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर होता है। हाँ नवीद, मैं भी अब्दुल बारी के साथ खेलने जा रहा हूँ। टीचर ने भी बोले थे कि दिन में हमें कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए। ये हुई ना बात, चलो हम खेलने चले, फिर मगरिब का वक्त भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं भी टैब रख कर आ रहा हूँ। नवेद जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, देखा हमने किस तरह अब्दुल बारी अंशरा जो है बुरी चीज़ों को देखने सुनने से गुरेज करते हैं, उन चीज़ों से दूर रहते हैं। इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कभी हमारे सामने कोई बुरी बातें सुनने में आए, देखने में आए, हम उन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें, चाहे ये हमारी ज़रूरत क्यों ना हो। डेस्कटॉप है, इंटरनेट है और जो है टैब्स है और जो सेलफोन है, लेकिन जब भी हमें ऐसी कोई इम्कानात लगे बुरी चीज़ों से, हम ऐसी चीज़ों से दूर हो जाए, अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर कर लें और जो है अपनी जो है नेमतों का जो है अल्लाह को हिसाब देने की तैयारी करें कि हमने आँखों का, कान का और जो है हाथ पैर, पूरे बदन के हर एक आज़ा जो अल्लाह ने हमें दिए, इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल किया, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सभी लोग जो इन बातों पर खरे उतरेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। फिर कहता हूँ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बारी के संग। ये लो नवीद, अरे कैच करो। सरफराज, तुम बराबर नहीं फेंकते और कहते हो कैच करने। मैं बराबर फेंकता हूँ, तुम पकड़ते ही नहीं। अब बॉल को फेंको भी नवीद। ये लो। ये मैंने कैच किया। सरफराज तैयार रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो आप सभी? हम ठीक है अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोग खेलो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। और अब्दुल बारी, वक्त पर खेल बंद कर देना। जी अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल बारी, मैं हमेशा देखता हूँ तुम्हारे अब्बा हमें भी सलाम करते हैं। हाँ अब्दुल बारी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे अब्बा हम लोगों को भी सलाम करते हैं, जबकि हम छोटे हैं उनसे। मेरे अब्बा और अम्मी और आपा भी सलाम में पहल करते हैं, लेकिन सलाम तो सिर्फ छोटे लोग अपने बड़े लोग को ही करना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो मेरे अब्बा और अम्मी जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं सलाम करो, सलाम करो। इसीलिए मैं सलाम करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अम्मी कहते हैं कि सलाम में पहल करना चाहिए, चाहे छोटे बड़ों को करे या बड़े लोग बच्चे को करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले सलाम करे उसे ज्यादा सवाब मिलता है। तब तो हमें भी हमेशा सलाम में पहल करके नेकी कमाना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, हमें सलाम में पहल करनी चाहिए क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा आपा, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम में पहल करते थे? हाँ सरफराज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों से मिलते या बच्चों के पास से गुजरते तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को पहले सलाम करते। वाओ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को सलाम करते थे। हाँ अब्दुल बारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बोले कि जो इंसान पहले सलाम करता है वो अल्लाह से ज्यादा करीब है। तब तो मैं भी हमेशा अपने छोटों को भी सलाम करूँगा। और सलाम को आम करना चाहिए। हम जब कभी एक दूसरे से मिले, जहाँ कहीं एक दूसरे के सामने आए तो पहले सलाम करना चाहिए और इसमें किसी को खास इज्जत देते हुए या तकब्बुर के तहत सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि हर किसी को सलाम करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है आपा।
लेकिन हम सलाम में क्या कहते हैं? दरअसल सलाम तो दुआ देना है। हम सलाम में कहते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मतलब हम एक दूसरे से ये भी जाहिर करते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई बुराई, कीना और हसद नहीं, बल्कि हम उनके लिए खैर की दुआ करते हैं। अच्छा, तब तो इससे हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ, हम सलाम को आम करेंगे तो हमारे बीच भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे से दिल जुड़ेंगे और हम आपस में एक दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि भलाई और सलामती की दुआ करेंगे। अब से मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन को भी सलाम करूँगा। मैं भी करूँगा और सलाम में पहल भी करूँगा। लेकिन याद रहे, जब कोई हमें सलाम करे तो जवाब देना भी जरूरी है, वो भी बेहतर अंदाज में। हाँ, इससे जवाब में हम भी उन्हें दुआ देंगे। मैंने सही कहा ना आपा? हाँ, बिल्कुल सही अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, अंशरा, कहाँ हो? अस्सलामुअलैकुम। वो दरअसल हमें सलाम में पहल करना था अम्मी। ओहो, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। देखे, पहले मैंने किया सलाम। नहीं, मैंने पहले किया। पहले सलाम मैंने किया। ये तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से हो। माशाल्लाह हमने देखा सलाम को किस तरह आम करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप सभी लोग भी जो अपने अपने इलाके में इस सलाम को जो आम करेंगे। छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को, हर एक जहाँ कोई किसी को पाए उसे सलाम करेंगे और सलाम में पहल करेंगे इंशाल्लाह। जल्द लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और जो है सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और ये जो बेल के आइकन को आप क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते रहें। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्बा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। ये देखो, मैंने कागज की नाव बनाया हूँ। माशाल्लाह। देखिए, मैंने कहा था मैं इसे एक दिन में सीख जाऊंगा बनाना। अब्बा मुझे खेलना है। अच्छा, जाओ खेल लो। लेकिन अब्बा मुझे टेबल के बाजू में खेलना है। वहाँ क्यों अब्दुल बारी? वहाँ सब सामान रखा है, वहाँ खेलने से सारे सामान यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। मैं संभाल कर खेलता हूँ अब्बा। कोई जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, तुम हमेशा खेल लेते हो और बाद में मुझे सब ठीक करके रखना होता है। अब्बा, आपा मुझे हमेशा कहीं भी खेलने नहीं देते। अब्दुल बारी, मैं तुम्हें घर में सिर्फ आउटडोर गेम खेलने मना करती हूँ। अब्बा, उस दिन अब्दुल बारी भौरा घुमाने लगा और भौरा जाकर किचन में रखे सामान पर गिरा। ठीक है, बच्चों आपस में झगड़ते नहीं और अब्दुल बारी इस तरह घर में नहीं खेलते। भौरा किसी पर गिर भी सकता है, इससे घर में किसी को चोट आ सकती है। आपा तो मेरी हमेशा कंप्लेन ही देते हैं, मैं घर में नहीं खेलता। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंशरा तुम्हारी कंप्लेन नहीं देते, बल्कि तुम्हारे अच्छे के लिए कहती है। वह आखिर तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है। जी अब्बा, अब मैं थोड़ी देर खेल लूं। मैं आपके टेबल से दूर खेलूंगा। ठीक है अब्दुल बारी, जाकर खेलो, लेकिन याद रहे उस तरफ नहीं जाना। जी अब्बा, बस मैं उसी वक्त जाऊंगा जब मेरा खिलौना वहाँ चला जाए। नहीं अब्दुल बारी, बेहतर है तुम बाहर जाकर खेलो या फिर यही बैठकर इंडोर गेम खेलो। आपा, मैं वही खेलूंगा। लेकिन ध्यान से अब्दुल बारी। ठीक है आपा। अब्बा, आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं अंशरा, जज़ाकल्लाह खैर। बस एक काम करो, अपनी अम्मी से पूछो कि क्या हुआ अब्दुल बारी, तुम ठीक तो हो? सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा हिलो नहीं, कांच फैल गई है बेटा, बिल्कुल हिलो नहीं, पैरों में लग जाएगी कांच। अंशरा, जाओ जाकर झाड़ू ले आओ। जी अब्बा। अब्दुल बारी, ये कैसे गिरा? अब्बा, वो मैं खेलने ही वाला था, लेकिन मैंने बॉल को गलती से इस तरफ फेंक दिया और ये गिर गया। अब्बा, मुझे हाथ में लग भी गया। ठीक है, कोई बात नहीं, रोते नहीं। अरे बहादुर बच्चे, रोते नहीं। ये लीजिए अब्बा। हाँ बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। तुम बिल्कुल भी हिलो नहीं अपनी जगह से, मैं तुम्हें उठाता हूँ। आओ, ये यहाँ बैठो। अंशरा, जाओ जाकर कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दो। जी अब्बा। दिखाओ कहाँ लगी है चोट। ओहो, खरोच आई है, मैं मरहम लगा देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। हाँ, कोई बात नहीं अब्दुल बारी, हमें कांच की फिक्र नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। आखिर तुम्हें चोट लग गया ना, इसीलिए हमेशा कहती हूँ मैं कि अपने अम्मी अब्बा की बातों को सुना करो और वैसा ही किया करो जैसा अम्मी अब्बा कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो हमेशा सुनता ही हूँ ना अब्बा। हाँ अब्दुल बारी, लेकिन तुमने आज जिद किए और कहना नहीं माने,
اس کے نتیجے میں نقصان ہو گیا نا. اسی لیے اپنے بڑوں کا کہا مانو, اور جب کبھی امی یا ابا کچھ کہے تو ضد نہ کیا کرو. جی ابا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں آئندہ سے ہمیشہ امی اور ابا کی باتوں کو سنا کروں گا اور ضد نہیں کروں گا. ہمیں امی ابا کی بات ماننی ہی چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا اور ان کی باتوں کو سننا, یہ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں؟ تب تو میں ہمیشہ امی اور ابا کی بات مانوں گا اور ضد نہیں کروں گا. شاباش, ماشاءاللہ عبد الباری. اب سنبھال کر کھیلو اور یہاں نہیں. جی ابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب ضرور کریں اور جو ہے بیل کا جو آئیکن ہے اسے دبائیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو جو آتے رہیں نئے اپڈیٹس کے, نئے ویڈیوز کے. انشاءاللہ جلدی لوٹیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیکھے عبد الباری کے سنگ. پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہاں, وہ اسکول میں بھی ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر رہا. رہنے دو اسے, ہم اپنا کھیلنے جاتے ہیں. کیا بات ہے نوید, سرفراز, تم لوگ اکیلے ہی جا رہے ہو, عبد الباری نہیں جا رہا؟ ہاں آپا, ہم نے اسے کئی مرتبہ آنے کو کہا, لیکن پتہ نہیں وہ اتنا اداس کیوں ہے اور کھیلنے بھی نہیں جانا چاہتا. ہاں, میں نے بھی غور کی, وہ تھوڑا پریشان سا لگ رہا ہے. اچھا تم لوگ کھیلو, میں عبد الباری کو سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا عبد الباری, کیوں تم اس طرح پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں, کچھ نہیں آپا, بس مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. گھبراہٹ؟ وہ کیوں بھلا؟ آپا, 2 دنوں بعد اسکول میں کمپٹیشن ہے اور مجھے ڈر سا لگ رہا ہے. کس بات کا ڈر عبد الباری؟ کہیں میں ہار گیا تو؟ دوسرے مجھ سے زیادہ بڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ طاقت بھی رکھتے ہیں. ارے رے رے عبد الباری, کمپٹیشن, کھیل کود میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور ویسے بھی یہ سب تو کھیل ہے, اس میں ہمیں بس حصہ لینا ہے اور کھیلنا ہے. ہار اور جیت کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں؟ ہاں, اور چاہے ہم جیتے اور چاہے ہارے, اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ہمیں تو بس اپنی طرف سے تیاری کرنی چاہیے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ہراتے ہیں؟ اگر ہمارا دل صاف ہو اور ہم ایمانداری سے کھیلے اور پھر بھی اگر ہم ہار گئے تو اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحت ہوتی ہے جس سے ہمیں آگے فائدہ ہوتا ہے. جیسے آئندہ ہم خوب اچھی طرح سے تیاری کرتے ہیں, سست اور لاپرواہ ہو کر یوں ہی بیٹھے نہیں رہتے ہیں. اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں آگے کے لیے. آگے کے لیے اور فائدے؟ وہ کیسے آپا؟ کیا فائدہ اور وہ کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. اور تم گھبراؤ نہیں, ہمت رکھو, تم جیت سکتے ہو. ہاں آپا, لیکن مجھے پھر بھی بہت فکر ہو رہی ہے. تم اس طرح سست بیٹھے سوچتے رہو گے تو اور فکر بڑھتی جائے گی. جاؤ, جا کر اچھی طرح تیاری کرو. لیکن آپا. اچھا تم ایک کام کرو, اس دعا کو پڑھو, اس سے تمہیں طاقت, ہمت ملے گی اور پریشانی سے نجات. شرط یہ ہے کہ تم ڈرو نہیں اور محنت سے تیاری کرو. ٹھیک ہے آپا. کون سی دعا ہے؟ کیا تم مجھے پڑھاؤ گے؟ ہاں ضرور, میرے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے آپا. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال. میں اسے جلدی ہی یاد کروں گا. آپا اس کے معنی بتاؤ. اس کے معنی ہے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر مندی سے اور رنج سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں بے بس ہو جانے سے اور سستی کے آنے سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کی زوراوری سے. آپا یہ زوراوری کا مطلب کیا ہے؟ زوراوری مطلب کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ دوسرے لوگ ہم پر غالب نہ ہو جائے. اچھا, تو اب میں اسے پڑھتے رہتا ہوں. ہاں ضرور پڑھو, لیکن صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم خود محنت اور تیاری نہیں کرو گے. ٹھیک ہے آپا. اس دعا کو پڑھ کر اور سمجھ کر
मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब जाओ, साथ में अपनी इवेंट की तैयारी करो और दिल को मजबूत रखो। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और प्यारे बच्चों, देखा हमने किस तरह जो है अब्दुल बारी जो है परेशान रहता है और जो है मायूस रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और अंशरा उसे किस तरह दुआएं सिखाती है और जो है अल्लाह पर तवक्कुल रखने कहती है, और साथ ही मेहनत और तैयारी करने कहती है ताकि वो जो है अपने कंपटीशन में जो है सक्सेस हो सके और उसके दिल का जो है डर निकल जाए। इसी तरह के हालात हम सभी लोगों के जो है ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात और हालात आते हैं जब हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फाइनली इससे एंजाइटी भी हो जाता है। तो ऐसे में जो हम अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह से दुआएं करें और साथ ही तैयारी करें। जो भी हालात आए, जो भी तकलीफ़ है, परेशानी, जिस चीज़ का भी डर है हमें, उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें और साथ ही अल्लाह से दुआएं करें। उम्मीद है आप सभी लोग इंशाअल्लाह इस दुआ को सीखेंगे और ऐसे जो भी हालात है उस पर आप अपनी तैयारी रखेंगे हमेशा इंशाअल्लाह। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आपा, अब आप देखना मैं कितनी जल्दी राउंड लगा के आता हूँ। हाँ, लेकिन धीरे चलाओ, ज्यादा स्पीड में चलाना ठीक नहीं। हाँ अब्बा, मुझे पता है ये बात। अब्बा हमेशा कहते हैं कि बाइक, गाड़ी, साइकिल और कोई भी सवारी इतनी ही तेजी से चलाओ कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। जानते हो, फिर भी तुम स्पीड में चलाते हो। मैं अब्बू से शिकायत कर दूंगी। ओहो आपा, मुझे चलाने तो दो, उसके बाद तय करना कि मैं ठीक से चलाता हूँ क्या नहीं। जैसे तुम हमेशा धीरे चलाते हो। पहले मैं बहुत स्पीड से चलाता था, लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ कि ये गलत है तो अब मैं धीरे से चलाता हूँ। और पता है आपा, बहुत ज्यादा तेज चलाने से हमें नुकसान हो या ना हो, कभी कभी इससे दूसरों को तकलीफ हो जाती है। हाँ, और हमें अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, वो भी जानकर गलती करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात भी मुझे पता है कि हमें अपनी सवारी इस तरह नहीं चलानी है कि दूसरों को तकलीफ हो, मतलब सही रफ्तार से और होशियार रहकर चलाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें तो सब पता होता है। अब जाओ, साइकिल चलाओ। ये मैं चला अपनी साइकिल के साथ। ये देखो। अब्दुल बारी, जरा धीरे। अरे संभालो। तुम देखकर नहीं चलाते अब्दुल बारी, सरफराज गलती तुम्हारी है। तुम रॉन्ग साइड से अपनी साइकिल लेकर आए, मैं तो धीरे ही चला रहा था। वो मैं सरफराज, तुम्हें इस तरह साइकिल नहीं चलानी चाहिए। रास्ते के बाजू से धीरे और होशियार रहकर चलाया करो। चोट लग गई ना? हाँ, लेकिन मैं तो इसी तरह चलाता हूँ अपनी साइकिल, बिल्कुल तेजी से। सरफराज, तुम्हें चोट लगी हो या नहीं? तुम्हारी इस हरकत से मुझे लगा है। और ये देखो, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो सरफराज, कभी भी हमसे गलती होने पर अपनी तरफ से नरमी से माफी मांग लेना चाहिए। इससे दूसरों के दिल नरम होते हैं और बात आगे नहीं बढ़ती। ठीक है अब्दुल बारी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन ये आज मेरे साथ ही होना था क्या? मुझे चोट लग गई है और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। अब्दुल बारी, ऐसा नहीं कहते। जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। ऐसे में गिला शिकवा नहीं, बल्कि दुआ किया करो। आपा, एक तो मैं गिर गया और मुझे लग भी गया, उस पर भी आप मुझे दुआ करने कह रहे हो? हाँ अब्दुल बारी, हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हर तरह का फायदा, नुकसान, तकलीफ या कोई हादसा हो तो इसमें नाशुक्रा बनकर गिला शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन आपा, अल्लाह हमें गिरने ही क्यों देते हैं? देखो सरफराज, हम अपनी गलतियों से ही खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें इन चीजों से नसीहत लेनी चाहिए और आइंदा गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह से दुआ क्यों मांगे? ताकि अल्लाह हमारी हमेशा मदद करे, हमें मुसीबतों और तकलीफों से बचाए और अपनी पनाह में ले ले। और दुआ करने से जो मुसीबत आई है उस पर हम सब्र भी करते हैं, ना कि हाय हाय करते फिरो। अच्छा आपा? हाँ अब्दुल बारी, और इससे हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि अल्लाह वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। हमें चोट लगी है, लेकिन हो सकता है कि और भी ज्यादा लग सकता था, या कोई बड़ा हादसा भी,
लेकिन अल्लाह हमें बचा लेते हैं। अच्छा ठीक है आपा, लेकिन आपने तो दुआ ही नहीं बताए। जब भी कोई हादसा, तकलीफ हो या मुसीबत आए तो इस दुआ को पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा। अच्छा आपा, मुझे भी इस दुआ को याद करा दो। ठीक है, आज शाम में मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन आपा, हम इस दुआ में अल्लाह से क्या कहते हैं? इस दुआ में हम कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा, ए अल्लाह मुझे मेरे इस सदमे या तकलीफ का अजर दे और बदले में मुझे इससे ज्यादा बेहतर दे। क्या अल्लाह तकलीफ होने पर भी अजर देते हैं? हाँ, जब भी हमें कोई तकलीफ पहुँचती है और उस पर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह उसके बदले में हमें अच्छा बदला देते हैं, या यूँ कहे कि तकलीफ के बदले में हमारे छोटे मोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो मैं हमेशा इस दुआ को पढ़ा करूँगा। बहुत अच्छे अब्दुल बारी, चलो अब घर चले। ठीक है, चलो। लेकिन आपा, अभी जो मुझे चोट लगी उसके लिए तो मैंने दुआ नहीं पढ़ा, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ जरूर, मेरे साथ दोहराओ, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन आते रहें। और इंशाअल्लाह लौटेंगे जल्दी नए एपिसोड के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। तुम देखना सरफराज, मैं आज किस तरह अब्दुल बारी से अच्छा पढ़ूंगा। हाँ जरूर पढ़ो, लेकिन याद है ना उस्ताद ने क्या बोले थे? उस्ताद ने? मुझे तो कुछ याद नहीं। यही कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जलन और हसद नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं थोड़े ही हसद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, नवीद, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम, हम ठीक है। और देखना आज मैं किस तरह अच्छे से पढ़ूंगा कुरान का सबक। वाह नवीद, इसका मतलब तुमने अच्छी तरह से तैयारी कर लिए हो। हाँ, एक बार सुन लो। हाँ, सुनाओ। वल अस्र इन्नल इंसाना। अरे नवेद, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो पढ़ो। ओ हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमिनुस सालिहाति व तवा। नवीद, तुम गलत पढ़ रहे हो। गलत? कहाँ गलत पढ़ा? क्यों सरफराज, मैंने गलत पढ़ा? मुझे तो ये सूरह याद नहीं। अब्दुल बारी, तुम ही बताओ मैंने क्या गलत पढ़ा? मैं क्यों बताऊंगा, तुम तो मुझसे अच्छा पढ़ने वाले थे ना। अब पढ़ो, मैं तो चला। तुम्हें तो याद ही नहीं हुई ये सूरह और चले थे अब्दुल बारी से अच्छा पढ़ने। वो मैं भूल गया। अरे मैंने ये क्या किया, इतना अच्छा सवाब कमाने का मौका गवा दिया। मुझे तो नवेद को कुरान सिखाना चाहिए था, क्योंकि अच्छी बातें, अच्छे काम और कुरान सिखाना तो सवाब का काम है। मुझे वापस जाना चाहिए, अभी जाकर कुरान सिखाता हूँ मैं। जा शैतान कहीं के, चला जा, तूने मुझे सवाब के काम से रोक दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मैं क्या करूँ? मैं उस्ताद को कैसे सुनाऊंगा? और अब्बू अम्मी भी क्या कहेंगे? तुम कल याद करके सुना देना। नहीं, मुझे आज ही सुनाना है उस्ताद को, लेकिन कैसे? फिक्र ना करो नवेद, मैं वापस आ गया। हाँ, तुम वापस क्यों आए? इस सूरह को अच्छी तरह पढ़कर सुनाने। हाँ नवेद, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कहाँ गलत थे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमिलुस सालिहात नहीं, पहले इल्लल लजीना आमनु
وعامل الصالحات ہے۔ چلو میں ایک بار اچھی طرح سے پڑھ کر سناتا ہوں، دھیان سے سنو، تمہیں بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے عبد الباری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ واہ عبد الباری، کتنا اچھا پڑھی تم نے۔ ماشاء اللہ کہو تو نوید، اب تمہیں یاد آ گیا ہوگا نا؟ ہاں، اب میں استاد کو سنا پاؤں گا۔ لیکن عبد الباری تم تو چلے گئے تھے، پھر دوبارہ آ کر نوید کو کیوں بتائے؟ وہ اس لیے تاکہ میں نیکی اور ثواب لے سکوں، ورنہ شیطان نے تو مجھے اس نیکی کے کام سے دور ہی کر دیا تھا۔ شکریہ عبد الباری۔ کوئی بات نہیں، اب تم اس سورہ کو کچھ مرتبہ دہرا لو۔ ہم مسجد میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دعائیں سیکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ مجھے آج بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں استاد کیا کہیں گے، اور آج تو وہ سبق بھی سننے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ عبد الباری، کیا بات ہے، آج تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ وہ میں دراصل کھیلنے میں رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کے وقت کھیل کو ترجیح نہ دیا کرو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی۔ بیٹھ جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہاں عبد الباری، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو اور جھوٹی باتوں سے کوئی بہانہ نہیں بناتے۔ جی، امی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کہنا چاہیے، بھلے ہی ہمیں نقصان ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا تو مسلمان ہی نہیں رہتا، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شاباش عبد الباری، اللہ سبھی بچوں کو ایسے والدین عطا کرے۔ اچھا، تو تمہیں سورہ مسد یاد ہوا اچھی طرح؟ جی، میں نے کل شام میں اس سورہ کو کئی مرتبہ دہرایا، اور آپا نے بھی میری مدد کی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ انشرہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے عبد الباری، اب تم سورہ کو پڑھ کر سناؤ۔ جی استاد، ابھی سناتا ہوں۔ دیکھنا آج میرے سے اچھا نہیں پڑھ پائیں گے عبد الباری۔ بڑے آئے، ہمیشہ عبد الباری ہی اچھا پڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ ماشاء اللہ عبد الباری، تمہاری قرأت تو دن بدن صاف اور اچھی ہو رہی ہے۔ اللہ تمہیں اور سبھی بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ اب چھٹی ہوتی ہے، سبھی یاد سے کل اپنا سبق صحیح طرح سے پڑھ کر آنا۔ جی استاد۔ ہم پڑھ کر آئیں گے۔ ہاں ضرور۔ عبد الباری، تم نے بہت اچھی قرأت کی ہے، کیا تم ایک بار دوبارہ پڑھو گے؟ ہم واپس سننا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، دوستوں، بزرگوں، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو۔ ماشاء اللہ عبد الباری نے بہت ہی اچھے انداز میں سورہ مسد کی قرأت کی، اسے یاد کر کے اپنے استاد کو سنایا۔
उम्मीद है और दुआ है कि इंशाल्लाह आप भी इस सूरह को याद करेंगे और जिन्हें याद हो इसे जो और बेहतरीन अंदाज में इसकी अदायगी करेंगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है इस बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। सीखे अब्दुल बारी के संग। आपा 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 कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ, अम्मी के काम में हाथ बटा रही हूँ। आपा क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे? हाँ ठीक है, कहो क्या बात है? आपा नवेद कहता है मुझे सूरह इखलास अच्छे से नहीं आता। अच्छा, लेकिन तुमने तो 2 दिन पहले ही अम्मी और अब्बू को सूरह इखलास सुनाए थे। वही तो, मुझे पता है मैं सही पढ़ता हूँ, लेकिन नवेद मुझे चिढ़ा रहा था। उसी को याद नहीं होगा सूरह इखलास। पता नहीं, हो सकता है, जरा सुनाओ तो। ठीक है आपा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम अलिद वलम ऊलद। लम अलिद वलम ऊलद नहीं, लम यलिद वलम यूलद। ओ हाँ, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, तुम्हें याद है। बस कुछ मर्तबा दोहराओगे तो बिल्कुल भी अटकोगे नहीं। हाँ अपा, देखिए आपने, मुझे ये सूरह याद है, लेकिन नवेद कहता है मुझे नहीं आता। आज ठीक से याद कर लो तो तुम्हारे दोस्त भी खामोश रहेंगे। अब मैं इस सूरह को अच्छी तरह सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ आपा, आपने क्यों बताए? मुझे खुद पढ़ना था। अरे अब्दुल बारी, तुम भूल रहे थे, इसीलिए मैंने याद दिलाई। लेकिन मुझे आता है, देखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ माशाअल्लाह, अब तो तुमने बगैर अटके ही पढ़ लिए। कल नवेद को भी सुना देना। हाँ, कल मैं जरूर नवेद को सुनाऊंगा आपा। ठीक है, अब फौरन कपड़े बदलो और मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। वो तो मुझे पता है आपा, तुम्हें तो हर बात पता होता है। चलो अब जल्दी जाओ। जा रहा हूँ मैं कपड़े चेंज करने, लेकिन मैं सिर्फ मुँह हाथ नहीं धोऊंगा, बल्कि वजू भी करके आऊंगा ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ। अरे वाह अब्दुल बारी, तुम तो बहुत समझदार बन गए हो। वो तो मैं हूँ। चलो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बनो, अल्लाह की तारीफ करो। हाँ ठीक है आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। ठीक है नवेद, सरफराज, आज बहुत खेल चुके, हम कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मैं जरूर असर से पहले ही पहुंचूंगा, आपा को चलकर बताता हूँ। अब्दुल बारी, क्या हुआ? इस तरह क्यों भागे चले आ रहे हो? आपा, आज तो बहुत मजा आया। मैंने राशिद को पहले ही आउट कर दिया था। हाँ, लेकिन कभी राशिद भी तो तुमसे जीत जाता है। खेल में ये होता ही है। आपा 2 मिनट रुको, मैं यही बाहर वजू कर लेता हूँ। ठीक है अब्दुल बारी, जल्दी करो, असर का वक्त बहुत कम बचा है। ठीक है, जल्दी करता हूँ। अब्दुल बारी, वजू से पहले वजू की दुआ पढ़ा करो। अच्छा आपा, क्या वजू के लिए भी कोई दुआ है? हाँ, वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर किया करो। आपा, ये तो मुझे पता है, मैं तो बिस्मिल्लाह कहता हूँ, लेकिन क्या कोई दुआ भी है? लंबी सी कोई दुआ? दुआ नहीं, कोई लंबी दुआ नहीं है। वजू से पहले बस बिस्मिल्लाह कहकर वजू कर लिया करो। अस्सलामु अलैकुम अब्बा।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बेटा। अब्बा अच्छा हुआ आप आ गए। बस 2 मिनट रुकिए, मैं वजू करता हूँ। आप देखिए तो मैं ठीक तरह से वजू करता हूँ या नहीं। ठीक है। आपा कहते हैं मैं ठीक से वजू नहीं करता। अब्दुल बारी बिस्मिल्लाह कहो। हाँ बिस्मिल्लाह। ये मैंने 3 बार पहले अपने दाएं हाथ को धोया और फिर 3 बार बाएं हाथ को धोया। अब मैं ये 3 बार कुल्ली कर रहा हूँ। अब ये मैं अपने नाक में 3 बार पानी डालकर साफ कर रहा हूँ। और ये चेहरे की बारी, अपने पूरे चेहरे को माथे से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कान तक धो रहा हूँ। अब हाथों को कोहनी तक 3 बार धोया। और ये मसा, लेकिन सिर्फ 1 बार। अपने बालों को इस तरह और सुन्नत के एतबार से अपने कानों को भी साफ कर लूं, अंदर और बाहरी हिस्सा। और अब मैंने पहले अपने दाएं पैर को 3 बार धोया और बाद में बाएं पैर को 3 बार। ये मैंने वजू कर लिया। ठीक तरह से किया ना अब्बा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक से किए तुमने। हाँ अब्बा, मैं हमेशा ठीक से वजू करता हूँ और आपा है कि मुझे हमेशा कुछ न कुछ तो बताते ही रहते हैं। मैं तुम्हें उसी वक्त बताती हूँ जब कभी जल्दी में तुम ठीक से वजू नहीं किया करते। मैंने तो ठीक से वजू किया है ना अब्बा? हाँ अब्दुल बारी, लेकिन अंशरा शायद इस बारे में कहती है। ये देखो, तुम्हारे कोहनी के पीछे सूखा रह गया, इसे अच्छी तरह धोया करो कि कोहनी के ऊपर तक पानी जा पहुँचे। और ये पैरों के पीछे टखने के नीचे का हिस्सा, इसे भी अच्छी तरह धोया करो। और अब्दुल बारी, ये गलती सिर्फ तुम्ही से नहीं होती बल्कि कभी कभी मुझसे भी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह ध्यान से तवज्जो के साथ धोता हूँ ताकि मेरा वजू ठीक तरह से हो जाए। सच में अब्बा, आपसे भी गलती होती थी? हाँ बेटा। तब तो ठीक है, जिस तरह आप ध्यान से वजू करते हैं मैं भी उसी तरह किया करूँगा, तो मुझसे भी गलती नहीं होगी। शाबाश अब्दुल बारी, लेकिन ध्यान रहे कि वजू में भी पानी को ज़ाया नहीं करते। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें, और जब मस्जिद में हो तब भी नलों को खूब तेजी से चालू करके पानी ना बहाए। जी अब्बा, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब्बा, क्या आप हमें बताएंगे कि अगर बहुत कम पानी हो या पानी ना हो तो हम वजू कैसे करें? हाँ बेटा अंशरा, देखो, अगर पानी कम हो तो हम हर चीज़ों को 3 बार की जगह 2 या 1 ही बार धो लें। यानी हाथ, कुल्ली, नाक, चेहरा, कोहनी और पैरों को 2 या 1 ही बार। हाँ, अगर वाकई में पानी सिर्फ इतना ही हो कि 3-3 बार अगर हम धोए तो पानी से पूरा वजू नहीं होगा, तो ऐसे में 2 या 1 बार धो लें। और अब्बा, एक बार तो सिर्फ आधा मग पानी था, तो अम्मी ने बोले थे कि सिर्फ फर्ज चीजों को धो लूं। अगर पानी बहुत ही कम हो और पूरा वजू मतलब सुन्नतों के साथ करना मुमकिन ना हो तो हम सिर्फ फर्ज चीज़ों को कर लें, जहाँ पहले अपने चेहरे को धो लें, दूसरा अपने दोनों हाथों को ठीक तरह धोए, और तीसरा मसा करे, मतलब अपने बालों को दोनों हाथों को भिगोकर पानी से पोंछें, और चौथा अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह धो लें। ये 4 बातें फ़र्ज है जिनका करना ज़रूरी है, वरना हमारा वजू होगा ही नहीं। अब्बा, क्या हम कभी कभी ऐसा ही करें? नहीं अंशरा, ऐसा उसी वक्त करना है जब बहुत ही मजबूरी हो, वरना हम सुन्नतों को अमल करते हुए वजू करें, जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। हाँ, चलो जल्दी से अपने कोहनी और पैरों के सूखे जगहों को धो लो, इससे पहले कि तुम्हारे वजू किए हुए बदन में लगा पानी सूख जाए। अंशरा, अपने अम्मी से जाकर मिलाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। जी अब्बा। अब्बा ने बदन का पानी सूखने से पहले क्यों धो लेने बोले? क्योंकि अगर बदन में लगा पानी सूख जाता तो तुम्हें दोबारा पूरा वजू करना पड़ता। अच्छा आपा? हाँ, तुम नमाज पढ़ो, मैं अम्मी से मिलकर आ रही हूँ। ठीक है आपा। ये तो अच्छा बच्चा
तो बच्चों और सभी फ़िक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है आप लोगों को हमारा एनिमेशन पसंद आया होगा और कुछ सीखने भी मिला होगा, ख़ास करके बच्चों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बटन को दबाना ना भूलें, जो नोटिफिकेशन का बटन है, ये जो बेल बना हुआ है एकदम, ठीक है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आज अब्दुल बारी से कहेंगे कि वो अपने खिलौने साथ लेकर आए। हाँ, अगर उसने अपनी गाड़ियाँ ले आया तो बहुत मजा आएगा। ये शायद नवेद और सरफराज होंगे। क्या हुआ अब्दुल बारी, खेलने नहीं जाना? लेकिन मैं तो 4 बजे आने वाला था, अभी तो कुरान पढ़ना है। क्यों ना तुम लोग भी थोड़ी देर मेरे साथ कुरान पढ़ लो, फिर हम साथ में खेलने जाएंगे। ये ठीक रहेगा, इसकी इजाजत तो अम्मी ने दे दिए थे। चलो हम साथ ही चलेंगे। तो ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं वजू करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। आता हूँ, लेकिन वजू करने में जल्दी नहीं करना चाहिए, अच्छे से वजू करना चाहिए। नवेद, तुम्हें पता है मैंने भी आज सुबह उठकर अपना कुरान का सबक पढ़ा और अब्बा को भी सुनाया। हाँ, मुझे भी याद करना था। मैं मगरिब के बाद बैठता हूँ। अब्दुल बारी, वजू के बाद तुम ये क्या पढ़ते आ रहे हो? वजू के बाद की दुआ। क्या वजू करने के बाद भी दुआ है? हाँ, वजू के बाद भी दुआ करते हैं। क्या तुम्हें नहीं आती वजू के बाद की दुआ? नहीं अब्दुल बारी, मैंने भी पिछले हफ्ते अब्बू और अम्मी से सीखा हूँ। क्या तुम्हें आती है सरफराज? हाँ, लेकिन मैं बीच में अटक जाता हूँ। तो क्यों ना हम एक मर्तबा पढ़ ले, तो याद हो जाएगा। तुम्हें पता है नवेद, जब हम एक दूसरे को अच्छा इल्म सिखाते हैं तो हम सभी को उसका सवाब मिलता है। अच्छा, तुम पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। देखो, जब हम वजू कर चुके तो हमें ये पढ़ना चाहिए। सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। ये तो मुझे याद है, अम्मी ने सिखाए थे। ये दुआम कलमा है। हाँ, ये दुआम कलीमा है, और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हमें वजू के बाद इसे पढ़ना चाहिए। ये तो हमें भी पढ़ने आता है, लेकिन क्या तुम्हें इसके मायने मालूम है? अब्दुल बारी को मायने नहीं मालूम होगा। मुझे पता है इसके मायने, आपा ने मुझे सिखाए थे। अच्छा, तो क्या है बताओ? इसके मायने है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, तुम्हें ये दुआ तो याद है। और जब हम वजू कर चुके तो इस दुआ को पढ़ने के बाद हम एक और दुआ भी पढ़ सकते हैं। एक और दुआ आपा? हाँ। वो कौन सी दुआ है आपा? अल्लाहुम्मा अजअल्नी मिनत तव्वाबीना वजअल्नी मिनल मुततहिरीन। इसके मायने है, ए अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वालों में और बहुत पाक रहने वालों में शामिल कर दे। लेकिन आपा, ये दुआ तो अब्बा ने नहीं सिखाए। हाँ, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो, इसीलिए बस दुआम कलिमा ही पढ़ा करो। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो इसे भी पढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह मैं इसे जल्दी ही याद कर लूँगा आपा। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अब्बा देखिए, मुझे कितनी अच्छी तरह से वजू के बाद की दुआ आ गई। अच्छा, सुनाओ तो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अब्दुल बारी। सुभान अल्लाह अब्दुल बारी। चलो जल्दी से कुरान का सबक सुना दो, तुम्हारे दोस्त इंतजार में हैं। जी अम्मी, अभी सुना दूंगा। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी, ओ अब्दुल बारी, कहाँ हो? हाँ बा, मैं यहाँ टॉयलेट रूम के अंदर हूँ। ठीक है ठीक है। क्या ठीक है आपा? मैं तो बाथरूम में हूँ, कैसे पता चलेगा? क्या ठीक है? ओफो, अरे अब्दुल बारी, आप खामोश रहो। टॉयलेट और बाथरूम के अंदर रहो तो बातें ना किया करो। आप ही मुझसे बात कर रहे हो, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। ओहो, अब चुप भी करो।
आपा क्या हुआ? आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब्दुल बारी, हम जब टॉयलेट बैतुल खला में हो तो बातें नहीं किया करते। लेकिन आपा आप ही तो मुझे बुला रहे थे ना। हाँ, ऐसे में अपने दरवाजे को अंदर से नॉक कर दिया करो तो पता चल जाएगा कि तुम अंदर हो, और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो मुख्तसर में जवाब दे दो। बेहतर तो यही है कि बाहर आने के बाद ही बात करो। ठीक है आपा, वैसे भी मुझे ये पता है। तो फिर क्यों बात की है तुमने? वो मैं भूल गया था। अच्छा, बहरहाल तुम बाहर आते ही बातें शुरू कर दिए। आप ही ने तो कहा था कि बाहर आकर बात करूं। हाँ, लेकिन बैतुल खला से बाहर आने पर पहले दुआ पढ़नी चाहिए। ओह हाँ, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छे। चलो अब मुझे बताओ, रात में जो मेरी पेंसिल तुमने लिए थे वो कहाँ है? आपा पहले ये बताओ मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? हाँ, तुम्हें बैतुल खला से बाहर आने के बाद की दुआ नहीं आती? वो इतनी छोटी सी दुआ है। हाँ, लेकिन कौन सी? गुफरानका। जब भी हम बैतुल खला से फारिग होकर बाहर आए तो इस दुआ को पढ़े, गुफरानका। हाँ, ये दुआ मुझे याद है, गुफरानका, लेकिन इसके मायने नहीं याद है। गुफरानका के मायने है कि हम अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं। ऐसा क्यों आपा? दरअसल बैतुल खला और बाथरूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर गंदगी रहती है और हम वहाँ अल्लाह का नाम जबान से कहकर नहीं लेते, और हो सकता है हमारे दिमाग में छोटे मोटे बुरे वसवसे भी आए। इसीलिए हम बाहर आते ही अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं कि हम वहाँ अल्लाह का नाम नहीं ले पा रहे थे, और दोबारा अल्लाह को याद करने लगते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम हर काम से पहले और बाद में भी अल्लाह को याद करें। तब तो मैं इसे वापस पढ़ता हूँ। गुफरानका, गुफरानका, गुफरानका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इस दुआ को जो है हमेशा पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। अगरचे याद है आपको तो आप इसे दोहराना ना भूलें। दुआओं की दरख्वास्त है, सब्सक्राइब करना ना भूलें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मॉडल विजन पेश करते हैं बच्चों के लिए उर्दू एनिमेशन। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है, हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। ये सारे चरिंदे, ये सारे परिंदे, ये दरख्त आसमां और ये पूरा जहां, ये रंग बिरंगे फूल, ये पत्थर और ये धूल, इन सब को बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। जमीन में हो, दरख्तों में हो या हो पानी में, सबको खिलाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हम सबको पालने वाला वो एक ही अल्लाह है। मुसीबत से बचाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। ये सारे चरिंदे, ये सारे परिंदे, ये दरख्त आसमां और ये पूरा जहां, ये रंग बिरंगे फूल, ये पत्थर और ये धूल, इन सब को बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। जमीन में हो, दरख्तों में हो या हो पानी में, सबको खिलाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हम सबको पालने वाला वो एक ही अल्लाह है। मुसीबत से बचाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज़ बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। ये सारे चरिंदे, ये
اللہ ہے. ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. زمین میں ہو، درختوں میں ہو یا ہو پانی میں، سب کو کھلانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. مصیبت سے بچانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. یہ سارے چرندے، یہ سارے پرندے، یہ درخت آسمان اور یہ پورا جہاں، یہ رنگ برنگے پھول، یہ پتھر اور یہ دھول، ان سب کو بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. زمین میں ہو، درختوں میں ہو یا ہو پانی میں، سب کو کھلانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہم سب کو پالنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. مصیبت سے بچانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. ہر کام سنوارنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے.